شروع ہو گیا اور وقت کی بھی پابندی آپ سے درخواست کروں گا تاکہ بیچ میں انٹرپشن کم سے کم ہو۔ تو دائرہ اور خط کیا ہے؟ دائرے وہ جو آسمانوں میں ہماری زمین کے گرد فرض کیے گئے ہیں، اور خط وہ جو ہماری زمین کے اوپر ہی ہیں لیکن وہ آسمانوں میں نہیں بلکہ گویا زمین سے چپٹے ہوئے وہ خطوط گولائی میں فرض کیے گئے ہیں۔ اب جو آسمانوں میں فرض کیے گئے ہیں تو یہ دو طرح ان کی بنیادی اقسام تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تو دائرہ صغیرہ ہوگا یا دائرہ عظیمہ ہوگا، صحیح ہے، یعنی بڑا دائرہ چھوٹا دائرہ۔ دائرہ عظیمہ کی تعریف پہلے دیکھ لیجئے۔ دائرہ عظیمہ کا جو فاصلہ ہے اس کے دونوں قطبوں سے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، اور دائرہ صغیرہ کا جو فاصلہ ہے اس کے ایک قطب سے کم ہوگا، دوسرے قطب سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات۔ اب اس کو آئیے منطبق کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے دوائر کھینچے ہیں، ایک یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے خط استوا کے بالکل اوپر یہ گھوم رہا ہے آسمانوں میں، یہ دیکھیں پورا گولائی میں، تو یہ دائرہ اس کا نام ہے معدل النہار۔ کیا نام ہے جی؟ آپ کی آواز آئے تاکہ دلچسپی بھی برقرار رہے۔ یہ ریڈ کلر کا جو خط استوا کے اوپر یہ دائرہ ہے معدل النہار، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دوسرا یہ جو دائرہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ دائرہ نصف النہار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دائرے ہیں یہ دائرہ عظیمہ ہے، یعنی یہ جو 10 دوائر ہیں یہ سب دائرہ عظیمہ کی اقسام میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ 10 دوائر یہ سب دائرہ عظیمہ کہلاتے ہیں۔ اب ساتھ میں جو دائرہ صغیرہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر دونوں کی جو یہاں بنیادی جو فرق بیان کیا گیا اس کو منطبق کرتے ہیں۔ دائرہ عظیمہ کی تعریف میں دیکھیں کیا کہا گیا کہ اس کے دونوں قطبوں سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ برابر ہوگا۔ دائرہ صغیرہ کا جو فاصلہ اس کے ایک قطب سے کم ہوگا، دوسرے قطب سے زیادہ ہوگا۔ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ جو ریڈ کلر کا یہ جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دائرہ ہے معدل النہار، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو قطب ہیں اور ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ دائرے کا جو قطب ہوتا ہے وہ 90 کی دوری پر دونوں جانب قطب بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ دائرہ معدل النہار جو عین خط استوا کے اوپر ہے، خط استوا چونکہ زمین میں وہ خط تصور کیا گیا جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، شمالاً جنوباً، یہ ہم پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث ہم پڑھ کر آ چکے، اور عرض بلد اسی سے ہم ناپتے ہیں خط استوا سے۔ تو اسی خط استوا کے عین اوپر محاذی اسی کے برابر آسمانوں میں جو دائرہ جو گھوم رہا ہے زمین کے گرد اس کو معدل النہار کہتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں عرض بلد کا تعین کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج وغیرہ کو ہم دیکھیں کہ وہ کس عرض پر ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ معدل النہار۔ اب اس کے جو قطب ہوں گے، دائرہ عظیمہ جو بھی ہوگا اس کے قطب 90 کی دوری پر دونوں سائڈ بنیں گے۔ اب جس طرح یہ دائرہ مشرق سے مغرب کو گھوم رہا ہے تو اس کے جو قطب ظاہر شمالاً جنوباً 90 کی دوری پر ہوں گے، اور دونوں برابر 90 کی دوری پر ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قطب یہ 80 کے فاصلے پر بن جائے اور دوسرا 100 کے فاصلے پر بن جائے، نہیں، دائرہ عظیمہ کی تعریف یہ ہے کہ دونوں قطب اس کے 90 کی دوری پر ایک ہی فاصلے پر ہوں گے۔ البتہ جو دائرہ صغیرہ ہوگا اس میں دیکھیں کیا کہا گیا کہ ایک قطب سے اس کا فاصلہ کم ہوگا، دوسرے سے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں دائرہ صغیرہ، یہ جو آپ کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ 10 پر پوری لائن گھوم رہی ہے، پھر یہ دیکھیں یہ 20 پر پوری لائن گھوم رہی ہے، پھر یہ 30 پر پوری لائن گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو لائنیں ہیں یہ اصل میں یہ عرض بلد کی لائنیں ہیں۔ اب یہ بھی زمین کو تقسیم کر رہی ہیں،
लेकिन बराबर दो हिस्सों में नहीं। अगर हम ये जो 10 पर लाइन है, अगर यहाँ से जमीन को हम दो टुकड़े कर लेते हैं तो अब देखें ये जो जमीन का हिस्सा है ये 80 दर्जात पर मुश्तमिल होगा और नीचे का जो टुकड़ा है वो जनाब 100 दर्जात पर मुश्तमिल होगा। तो ये दायरा सगीरा है। अब जाहिर है ये दायरा सगीरा, इसका जो कुतुब है शुमाल की जानिब वो 80 दर्जे के फासले पर होगा, लेकिन इसका जो कुतुब है जुनूब की जानिब तो वो 90 नहीं बल्कि पूरा 100 दर्जों पर मुश्तमिल हो जाएगा। क्यों कि हाँ ये दायरा सगीरा है, इसका जो कुतुब हैं ये दोनों तरफ से बराबर फासले पर नहीं होते बल्कि एक साइड से कम होगा, एक साइड से ज्यादा होगा। ठीक है जी। और दायरा अजीमा जो है उसकी एक यानी जो तारीफ ये भी है कि जो बराबर दो हिस्सों में कुर्रे को तकसीम कर दे, और दायरा सगीरा जो बराबर दो हिस्सों में तकसीम ना कर सके बल्कि एक हिस्सा छोटा रहे एक हिस्सा बड़ा रहे तो वो दायरा सगीरा है। जिस तरह आपने अभी देख लिया कि ये दरमियान में जो दायरा था मौदिल नहार का, ये जमीन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। खत इस्तिवा जहां पर वाक़ है कि ऊपर वाला हिस्सा पूरा 90 दर्जात पर ये कुतुब शुमाली है और इसी तरह कुतुब जनूबी भी उसी फासले पर यानी 90 के फासले पर है। तो ये बराबर दो हिस्सों में तकसीम इसने कर दिया जमीन को। तो ये हो गया दायरा अजीमा जो मौदिल नहार कहलाता है। जबकि इसके आसे पास ये जो दायरे घूम रहे हैं अगरचे ये भी दवायर हैं लेकिन ये दवायरे सगीरा में आएंगे। क्यों कि ये जमीन को बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे बल्कि अगर यहाँ से लें तो जनाब ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा छोटा हो जाएगा है। और अगर यहाँ से हम लें इस दायरे को तो जब भी ये हिस्सा बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो ये सारे दायरे सगीरा हैं। ठीक है जी। ये आप बुनियादी एक चीज समझ गए दायरा अजीमा में और दायरा सगीरा में एक जो फर्क है कि दायरा अजीमा का जो फासला उसके कुतुबों से बराबर होगा यानी 90 की दूरी पर दोनों कुतुब होंगे, और दायरा सगीरा जो है उसका जो फासला कुतुबों से एक से कम होगा और एक से ज्यादा। आइए दूसरा पॉइंट हमारा इसको देख लेते हैं। एक दायरा दूसरे पर मुंतबिक हो तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब पर मुंतबिक होगा। ठीक है जी। ये भी इसी को आप इस मिसाल से देख लें कि जो दायरा मोदिल नहार है ये किस पर मुंतबिक हो रहा है इस टाइम, खत इस्तिवा पर। और खत इस्तिवा उसका जो जनाब जो कुतुब थे वो हम पीछे पढ़ चुके कि दोनों 90 की दूरी पर वाक़ हैं। कुतुब शुमाली भी ये देखें 90 की दूरी पर आ रहा है, देखें 70 80 90। ठीक है। और इसी तरह कुतुब जुनूबी अगर हम खत इस्तिवा से देखें तो ये देखें ये खत इस्तिवा 10 30 ये देखें 40 50 और ये पूरे यहाँ जाकर 90, कुतुब जनूबी भी 90 पर। अब इस पर जो दायरा मुंतबिक हो रहा है इसके इन ऊपर आ रहा है तो वो है मोदिल नहार। तो अभी हम ये कायदा पढ़ चुके, दूसरा जो पॉइंट है कि एक दायरा अगर दूसरे पर मुंतबिक हो तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब पर मुंतबिक होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब खत इस्तिवा जो कि दायरा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए खाली कह रहा हूँ, दायरा खत इस्तिवा नहीं है वो खत है, लेकिन दायरा मौदिल नहार इसके ऐन ऊपर तस्वुर किया गया है आसमानों में। तो जब खत इस्तिवा के कुतुबों का फासला 90 पर है तो इसी तरह जो इसके ऊपर मुंतबिक होने वाला दायरा है दायरा मौदिल नहार, उसके जो कुतुब बनेंगे आसमानों में वो भी 90 की दूरी पर बनेंगे। यानी जिस तरह यहाँ ये दायरा खत पर मुंतबिक हो गया तो खत इस्तिवा के कुतुबों पर मोदिल नहार के जो कुतुब हैं वो भी उसी के ऊपर मुंतबिक हो जाएंगे। ठीक है जी। ये भी एक आसान सी बात थी
जो कि आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। एक दायरा, अच्छा ये जो मैंने यहाँ बताया ना कि ये 90 एक दायरा दूसरे पर मुंतबिक हो तो उसके जो कुतुब भी मुंतबिक होंगे। असल में जो दवाइर अशरा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बाज दायरे ये एक दूसरे के ऊपर भी मुंतबिक होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो दायरा निस्फ नहार है, दायरा निस्फ नहार है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ये दायरा कौन सा चल रहा है जनाब? ये दायरा है मारा अकताबिल अरबा। अगर कोई बंदा यहाँ इस मकाम पर खड़ा है तो ये दायरा निस्फ नहार भी उसका सेम यही होगा, क्योंकि इन दोनों के तारीफात जो हैं वो यकसा हैं। अलबत्ता जो दायरा निस्फ नहार है ये आगे इसकी डिटेल में आप पढ़ लेंगे और वहीं ये चीज ये पॉइंट आपको सही मानों में समझ आएगा। फिल वक्त आप ये समझ जाइए कि एक दायरा दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो सकता है, इसमें कोई तजाद वाली बात नहीं है। और पॉइंट आप पढ़ चुके कि जब एक दायरा दूसरे पर मुंतबिक होगा तो उनके जो कुतुब हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। एक दायरा दूसरे का तकातो करे, तकातो यानी काटना, एक दायरा दूसरे को क्रॉस करे, तकातो काटे उसको, तो अब हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब से हट जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक नहीं है, एक दूसरे से हट गए हैं, तो जाहिर है वो जब एक दूसरे को तकातो करेंगे, काटेंगे, तो अब जाहिर है हर एक का जो कुतुब है वो 90 की दूरी पर बनेगा। जब दायरे अलग हो गए, एक दूसरे को काट रहे हैं, क्रॉस में एक दूसरे को जा रहे हैं, तो उनके जो कुतुब होंगे वो भी एक दूसरे से हट जाएंगे, क्योंकि हर एक का कुतुब 90 की दूरी पर बनेगा। लेकिन दोनों दायरों के कुतुबों में 90 दर्जे से ज्यादा फासला नहीं होगा। देख लेते हैं इस पॉइंट को। आप इसी को ले लीजिए, ये देखें, ये हमारा दायरा रेड कलर का ये चल रहा है मोदिलुन नहार। क्या नाम है इसका जी? हाँ, दायराए मोदिलुन नहार, जो एन खत्ते इस्तिवा के ऊपर आसमानों में ये तस्वीर है, इसका नाम है मोदिलुन नहार। ठीक है जी। अब ये जो हमारा दायरा है ये है दायरा निस्फ नहार। ठीक है जी, दायरा निस्फ नहार। ये मैंने जो बनाया था ये मैंने कराची को सामने रखकर ये दायरा बनाया था कि अगर कोई बंदा कराची में खड़ा हो तो ये दायरा उसका निस्फ नहार कैसे बनेगा। ये देखें, ये मैंने ये कराची शहर आ रहा है, ये देखें, तो ये कराची शहर में अगर एक बंदा खड़ा है तो उसका दायरा निस्फ नहार किस तरह बनेगा। तो ये देखें, ये पूरा दायरा ये आसमानों में गोल घूमेगा। ये देखें पूरा गोल घूमता हुआ ये दायरा बनता है शुमालन जुनूबन। किस तरह बनता है जी? शुमालन जुनूबन। ये दायरा है निस्फ नहार। अब यहाँ खाली हम आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहे हैं जो अभी हम पढ़कर आ चुके कि एक दायरा दूसरे का तकातो करे। माजरत, साथ में क्लास भी और साथ में चाय भी चल रही है, तो आप भी पी सकते हैं, अलबत्ता तवज्जो ना बटे इसका ख्याल रखिएगा। अब देखें, ये यहाँ एक दूसरे का तकातो कर रहे हैं। ये दायरा चल रहा है मशरिक से मगरिब, इसका नाम है मोदिलुन नहार। और ये दायरा ये निस्फ नहार है जो शुमालन जुनूबन ये दायरा बना हुआ है। तो ये देखें, एक दूसरे को इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर ये देखें, ये ग्रीन कलर का जो दायरा है जी, इसका नाम है दायरा मिंतकतुल बुरूज है, दायरा मिंतकतुल बुरूज।
جو کہ سورج کی سالانہ حرکت کو یہ واضح کرتا ہے. دیکھیں پورا یہ گھوم رہا ہے، یہ دیکھیں پورا گھوم رہا ہے. سورج سال میں شمالی جنوبی دنیا میں جاتا ہے نا، تو یہ دیکھیں پورا وہ شو کر رہا ہے کہ سورج کس طرح شمالی جنوبی دنیا میں جا رہا ہے. بہرحال یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں بھی اس پوائنٹ پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کا تقاطع کر رہے ہیں. دائرہ معدل النہار اور دائرہ منطقۃ البروج ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ہاں جی جی، یہ آپ کا سوال اچھا ہے. یہ اصل میں یہ ایک دوسرے کے یہاں ایک دوسرے کا تقاطع کر رہے ہیں، لیکن یہ میں ابھی یہ آپ دو دائرے سمجھیے تھوڑا آسانی کے لیے. یہ دائرہ نصف النہار ہمارا جا رہا ہے شمالن جنوبن، یہ معدل النہار جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پر ایک دوسرے کا تقاطع ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے قطب، آپ نے کیا تعریف پڑھی کہ دائرہ عظیمہ کا جو قطب ہے وہ 90 کی دوری پر بنے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی جو دائرہ نصف النہار ہے شمالن جنوبن جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے جو قطب ہوں گے وہ مشرق مغرب کی طرف بنیں گے. ٹھیک ہے جی، 90 کی دوری پر مشرق مغرب میں بنیں گے. تو اب دیکھیں یہ دائرہ نصف النہار کے قطب مغرب مشرق، ٹھیک ہے، اس سائڈ بنیں گے 90 کی دوری پر. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو دائرہ معدل النہار ہے یہ ریڈ کلر کا، جو کہ مشرق سے مغرب کا یہ دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے جو قطب ہیں وہ بھی ظاہر 90 کی دوری پر یہاں بنیں گے. شمال جنوب 90 کی دوری پر بنیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ دونوں دائرے جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، تو ان کے جو قطب ہیں ان کا جو ایک دوسرے پر منطبق ایک تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، منطبق ایک دوسرے پر نہیں ہوں گے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دائرہ منطقۃ البروج ہے، اس کے جو قطب ہیں وہ بھی 90 کی دوری پر یہاں کے بنیں گے. ایک قطب اس سائڈ بنے گا، ایک قطب اس سائڈ بنے گا 90 کی دوری پر. ٹھیک ہے، پھر یہ جو دائرہ مارا باقطاب الاربعہ، اس کے قطب بھی 90 کی دوری پر بنیں گے. تو یوں جب ایک دائرہ دوسرے پر منطبق نہ ہو تو ان کے جو قطب ہیں وہ بھی منطبق نہیں ہوں گے، ان میں فاصلہ ہوگا. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، اب فاصلہ ہوگا، لیکن یہ جو فاصلہ ہے یہ 90 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ دیکھیے نا کہ یہ تھا دائرہ معدل النہار، مشرق سے مغرب جو گھوم رہا ہے، اور یہ تھا ہمارا دائرہ نصف النہار. ٹھیک ہے جی، دونوں ایک دوسرے کا تقاطع کر رہے ہیں، اور دونوں کے جو قطب ہیں وہ جناب 90 کی دوری پر بنیں گے. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو فاصلہ ہے یہ 90 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیں یہ جو دائرہ نصف النہار کا اگر ایک قطب یہاں بنا، دوسرا قطب یہاں مغرب میں بنا، اور دائرہ معدل النہار کا قطب ایک شمال میں بنا ایک جنوب میں بنا. اب اگر اس دائرے کو ہم ہلکا سا یوں ٹیڑھا کرتے ہیں، ہلکا سا ہم اس کو یوں ترچھا کرتے ہیں، تو اب اس کا جو قطب ہے یہاں سے ذرا 90 کی دوری پر اور سرک جائے گا یہاں سے نیچے کی طرف. جتنا اس دائرے کو ہم ٹیڑھا کریں گے، ترچھا کریں گے، تو یہاں اس کا قطب بھی 90 کے فاصلے پر اتنا نیچے کی طرف چلے جائے گا، اور یہاں والا قطب 90 کے فاصلے پر اوپر کی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح یہ جو دائرہ معدل النہار ہے اگر اس کو ہم تھوڑا ٹیڑھا میڑھا کریں تو ظاہر ہے جتنا ٹیڑھا کریں گے تو وہ قطب کا جو فاصلہ چونکہ 90 رہنا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ٹیڑھا ہو جائے گا. اس سائڈ کریں تو اس سائڈ، اس سائڈ کریں تو اس سائڈ، اور قطبوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 90 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جب اس سائڈ ہم نے اس کا یہ جو دائرہ ہے
निस्फ नहार है, जब हमने इसको इससे टेढ़ा किया कुतुब इसका यहाँ से ये वाला नीचे आ गया, पॉइंट उसका है नीचे आ गया। अब नीचे जब आया तो अब आप देखें कि इसका जो फासला है इसके कुतुब से, जो कि जुनूब में बन रहा है और शुमाल में बन रहा है, दायरा मिनतकुल बुरूज के जो कुतुब हैं, इससे जो उसका फासला है वो 90 से ज्यादा इसलिए नहीं होगा कि जब यहाँ से ये कुतुब नीचे आया तो अब आप देखें यहाँ से वो करीब हो गया, यहाँ से वो करीब हो गया, और अब उसका जो फासला इस साइड वाला था वो 90 से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि उसका चूंकि एक कुतुब, ये जो हमने इसको जो टेढ़ा किया था ये कुतुब नीचे आ गया था, ये कुतुब जब ऊपर चला गया तो अब देखें ये फासला उसका मोदिल नहार के कुतुब से 90 के अंदर अंदर ही रहेगा, क्योंकि 90 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो वो अगले में माइनस होना शुरू हो जाएगा, अगले में माइनस होना शुरू हो जाएगा, और लिहाजा वो 90 के फासले पर ही, यानी 90 से इनका जो फासला है कुतुबों का वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो तकसीम है ये 360, जो कि कुर्रे के आस पास ये सारे दायरे घूम रहे हैं, और जो कुर्रा होता है वो 360 दर्जात पर मुश्तमिल होता है, हम पढ़ चुके, और 360 का आधा 180, ठीक है जी, यानी कुर्रे को अगर आधा आधा करें तो 180, और 180 को भी अगर हाफ करें तो 90 दर्जे। तो पता चला कि ये 90 से ऊपर ये फासला कुतुबों का नहीं जाएगा, क्यों कि आप दायरे को जहां भी घुमाएंगे तो वो इसी कुर्रे के गिर्द ही घूमेगा, लिहाजा उनको जो कुतुब हैं वो 90 के अंदर अंदर ही फिगर रहेगा, 90 से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जैसे ही जाएगा तो वो फिर आगे की जानिब से माइनस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, ये तीसरा पॉइंट आप देख चुके कि एक दायरा दूसरे का तकातो करे तो हर एक का जो कुतुब है दूसरे के कुतुब से हट जाएगा, और हटने के बावजूद दोनों दायरों के कुतुबों में 90 दर्जे से ज्यादा फासला नहीं होगा, 90 के अंदर अंदर ही फासला रहेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं, जिन दो कुतुबों पर दो दायरा अजीमा का तकातो हो, उन दो नुक्तों पर वो दोनों दायरे बाहम मुतमास होंगे, यानी एक दूसरे को टच करेंगे, छुएंगे, और उन दो नुक्तों के बाद दोनों दायरों में फासला बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि उन दो नुक्तों के बाद 90 दर्जे पर दोनों दायरों में इतना ही फासला हो जाएगा जितना कि दोनों दायरों के कुतुबों में फासला होगा, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा पॉइंट है, और इंशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो आपकी रहेगी तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं फिर पढ़ देता हूँ, फिर इसको मुंतबिक करते हैं। जिन दो नुक्तों पर, ठीक है जी, वो पॉइंट, वो नुक्ता जहां पर दोनों दायरे आपस में टच हो रहे हैं, एक दूसरे का तकातो कर रहे हैं, उन दो नुक्तों पर वो दोनों दायरे बाहम एक दूसरे को टच करेंगे। इधर तकातो कैसे होगा कि एक दूसरे को क्रॉस करे, हैं, जिस तरह रोडों में होता है कि एक रोड इधर से निकल रहा है दूसरा उधर से आ रहा है, तो दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये इसी तरह दायरे भी एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे, जहां से वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो अब उन दो नुक्तों के बाद दोनों दायरों में फासला ज़ाहिर बढ़ेगा, क्योंकि एक दायरा एक मशरिक से मगरिब अगर बना हुआ है तो दूसरा दायरा शुमाल से जुनूब बना हुआ है, तो ज़ाहिर है एक दूसरे को जब उन्होंने टच किया तो उसके बाद उनका फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा, हैं। जब बढ़ने के बाद इन दो नुक्तों के बाद जो 90 दर्जे पर दोनों दायरों में जितना फासला हो जाएगा, जितना के दोनों दायरों के कुतुबों में फासला होगा। अब आइए इसको मुंतबिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो दायरा था मोदिलुन नहार, ये दायरा था निस्फुन नहार। अब देखें, ये है शुमालन जुनूबन, ये है जनाब मशरिकन मगरिबन, शर्कन गरबन, ये दायरा, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पर आकर ये एक दूसरे
तकातो कर रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट पर, और अगर इसी को अगर हम घुमाएं तो दूसरे पॉइंट दूसरी तरफ भी है, यहाँ भी एक दूसरे को ये तकातो कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी दो पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे हैं। तो अब हम बात यहाँ हमने ये पढ़ी कि टचिंग के बाद, टचिंग पर तो इनका जो फासला था वो जीरो रह जाएगा, लेकिन फिर जूं जूं ये मोदिलो नहार इस साइड को बढ़ेगा या इस साइड को बढ़ेगा, और यहाँ से जो निस्फ नहार वो शुमाल की जाने बढ़ेगा या जुनूब की जाने बढ़ेगा, तो अब जो जो बढ़ेगा इनके दरमियान देखें फासला भी बढ़ता जाएगा। ये देखें बढ़ते 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 हत्ता के पूरे 90 दर्जे का ये फासला इनमें पैदा हो जाएगा। ये देखें आप वो जरा डी डी जो प्रकार वाला, यानी वो जो डी होता है ज्योमेट्री की, आप जरा उसको ज़हन में लाएं तो वो कैसी होती है, 90 पर वो शामिल होती है। तो इसी को आप ज़हन में लाएं तो ये एक पॉइंट से यहाँ तक 90 का फासला है, फिर यहाँ तक 90 का फासला है। अब ये मिलाकर 180 है, फिर यहाँ से भी 90 का फासला, यहाँ से भी 90 का फासला, तो ये मिलाकर 180। ठीक है, तूले बलद में आपने पढ़ा था ना कि तूले बलद जो है वो 180 दर्जात पर मुश्तमिल होता है, जबकि अर्ज़ बलद आपने पढ़ा था कि वो 90 ज्यादा से ज्यादा 90 दर्जात पर मुश्तमिल होता है। तो ये आप उसी तकसीम को सामने रखकर आप इस पॉइंट को समझेंगे कि इस पॉइंट पर जहां दोनों दायरे आपस में मिले फासला इनका जीरो रहेगा, लेकिन फिर जूं जूं ये दायरे आगे बढ़ेंगे, ये शुमालन जुनूबन आगे बढ़ेगा और ये मशरिकन मगरिबन बढ़ेगा, तो इनका जो फासला है वो भी बढ़ता जाएगा। हत्ता के इनके जो कुतुब हैं, तो जिस तरह इनके कुतुबों में 90 दर्जे का फासला होता है, तो उस पॉइंट पर आकर इन दोनों दायरों में भी 90 का फासला पैदा हो जाएगा। तो यहाँ यही बात बयान हो रही है। ठीक है, और ये मैंने समझाने के लिए ये मैंने निस्फ नहार का दायरा सामने रखा हुआ है, वरना आप किसी भी दायरे को आप लेंगे तो सब पर यही तारीफ मुंतबिक होगी, ये सादिक आएगी। दवाइर आशरा में से जिसको भी एक दूसरे से तकातो होगा तो उनका जो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को छुएंगे तो उसके बाद जो उनका फासला जो जो आगे बढ़ेगा तो उनका गैप बढ़ता जाएगा, हत्ता के कुतुब में जाकर ये फासला 90 दर्जे पर मुश्तमिल होगा। नंबर 5, दो दायरों के कुतुबों में जितना फासला हो उससे ज्यादा फासला उन दो दायरों के किसी हिस्से में नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कुतुब है ये गोया उस दायरे का किनारा होता है। अब देखें ना, मोदिलुन नहार है, ये इसका जो फासला है ज्यादा से ज्यादा अगर शुमालन जुनूबन अगर इसका फासला लें तो 90 पर बस हो जाएगी, क्योंकि 90 के बाद फिर ये पीछे की जानिब जब ये होगा तो ये माइनस में ये गिनती शुरू हो जाएगी, 89 88 है, माइनस में चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जो चूंकि जो बनता ही उस पॉइंट पर है कि जो सबसे ज्यादा फासला हो, तो किसी भी दायरे का जो कुतुब वो ज्यादा से ज्यादा जो उसका फासला वो 90 है, तो 90 पर ही कुतुब जब बनता है तो यहाँ ये बयान किया गया कि दो दायरों के कुतुबों में जितना फासला है उससे ज्यादा फासला उन दो दायरों के किसी हिस्से में नहीं होगा। अब जिस तरह ये जो मोदिल नहार था है, ये मोदिल नहार और ये है माराबी अकदाबिल अरबा, दोनों यहाँ जीरो फासले पर हैं क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मुमास हो रहे हैं। लेकिन अब जो जो इनका फासला बढ़ता जाएगा, यहाँ अब देखें ये जो जो अपने कुतुब की जानिब बढ़ रहा है ये दायरा, ये अपने दायरा कौन सा वाला, ये मारा भी अक्ताबिल अरबा। अब इसका कुतुब दायरा यहाँ ये खुद शुमालन जुनूबन है, तो कुतुब इसका बनेगा मशरिकन मगरिबन, और कितना दूरी पर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर कुतुब बनेगा, और वो कितनी दूरी है, 90 दर्जे। ठीक है जी।
अब ये जो मोदिल नार है, इसका जो कुतुब है वो भी 90 पर बनेगा और वो सबसे ज्यादा दूरी इसकी होगी, दोनों जानिब शुमालन जुनूबन। तो अब जाहिर है इनके कुतुबों में दायरे के जो दो कुतुब हैं उनका जो आपस का फासला वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब जिस तरह ये 0 अब यहाँ से इन दोनों का फासला नापें तो हो सकता है 20 दर्जे हो, थोड़ा और आगे नापें तो 30 दर्जे हो, और आगे नापें तो 50 दर्जे होगा, और आगे नापें तो 70 80, हत्ता के जो दोनों दायरों का जो कुतुब वाला पॉइंट है इसमें इनका फासला ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता था यानी 90 दर्जे फासला हो जाएगा दोनों कुतुबों के दरमियान। जो दोनों कुतुबों का जो पॉइंट है दायरे का वो उनका सबसे ज्यादा हद फासिल है। पांचों पॉइंट ये हमारा डिस्कस हो गया, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। छठा पॉइंट है हमारा दायरा अजीमा 10 है। दायरा अजीमा जो मशहूर हैं दवायरे अशरा, अशरा कहते हैं 10 को। तो ये 10 दायरे ये इल्मे हैयत व तौकीत के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये फर्ज किए हैं जो आसमानों में हमारे कुर्रे हमारे जमीन के गिर्द ये बनते हैं। कौन से 10 हैं? आइए, एक है मोदिलुन नहार मिन तकतुल बुरूज, दूसरा मारा बि अख्ताबिल अरबआ, मारातुन बिल अख्ताबिल अरबआ। ठीक है जी, तो ये हो गया तीसरा। दायरातुल मेल, दायरातुल अर्ज, दायरातुल उफुक, दायरा निस्फुन नहार, दायरा अव्वलुस सुमूत, दायरा वस्तु समा रुया, दायरातुल इर्तिफा। ठीक है जी, ये 10 दवायर ये आपके सामने बयान हुए। दवायर सगीरा तो बहुत हैं लेकिन जो 10 दवायर जो दायरा आशरा कहलाते हैं, दवायर आशरा, तो ये 10 हैं और मशहूर इन्हीं से अमूमन हमारी गुफ्तगू इल्म हैयत व तौकीद में की जाती है। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये 10 चूंकि मशहूर भी हैं और ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी है तो इन्हीं से हमारी गुफ्तगू अमूमन होती है। अब मोदिल नहार आ गया।